Hari Om students, welcome to my channel Learning Science by Ashish sir. So today as we discussed in the earlier class that how many right about chemical reactions, right, how to balance the chemical reactions, and I had given 4 questions and I had told you that give the solutions in the comment box, but I haven't got too much answers. I had got few answers, like Radhika has answered, Sanyogita has answered, and one more girl, Palak Yadav, has answered the question. Okay, so let us move on, and I wish you a very happy Choti Diwali. Okay, so let's start the class. Okay, so today I am going to discuss you about types of chemical reaction. Types of chemical reaction, right? We discussed this types of chemical reaction. Okay, so there are beta 5 types of chemical reactions. As much as I try to cover, so I think in the next episode we'll finish this chapter and then we'll start chapter 2. And kindly do watch it and just pass on this to other students, those who are needy. At least they can understand and clear their concepts. Okay, so let's start. First reaction is combination reaction. Okay, combination reaction. Second is decomposition reaction. Decomposition reaction. And the third is displacement reaction. Another is double displacement reaction. Double displacement reaction. And the last but not least is redox reaction. We can say every reaction is a redox reaction because in each reaction either the electron are loosened or either the electron is gained. So let us start first type of chemical reaction. हिंदी में कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए भी मैं बता सकता हूँ. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बेटा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं. विघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया. और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोहरी विस्थापन अभिक्रिया. और रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीकरण या अपचयन रिएक्शन. ओके, तो ये आपका हो गया. लेट मी स्टार्ट अनदर first type of chemical reaction we are going to discuss. Okay, what is combination? Can anyone tell me what is combination? Right now I am wearing this yellow t-shirt. If I wear any blue jacket, so that will be perfect combination, right? Means mixing of something is combination reaction. Okay, are you getting that? Mixing of something is known as combination reaction. किसी भी चीज को कंबाइन करना या किसी भी चीज को मिलाने ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. जैसे इसको जनरली हम लिख सकते हैं A प्लस बी एरो ए बी, मतलब A और B मिल करके ए बी देते हैं. दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट. यू ऑल नो दैट रिएक्शन शुड बी रिटन राइट साइड एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटन एट द लेफ्ट साइड. ओके, सो लेट मी टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. Like this was the general reaction. A plus B, AB is general reaction. Let me tell you few of the reactions. Like C plus O2 arrow CO2. अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके, दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनाते हैं. अच्छा, एक बात बताइए, घर कैसे बनता है? मम्मी पापा बच्चे मिलकर के ही तो घर बनाते हैं. अ फैमिली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स. इन द सेम वे यू कैन अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इन द होम आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर देयर. ओके, लेट मी टेल यू अनदर एग्जांपल. H2 plus half O2
gives H2O. This reaction is little confusing. You are finding that half O2. Why sir has written half O2? So that just to balance it, you can write down like this also. 2H2 plus O2 gives 2H2O. So now this can also be written like that. So this is combination reaction, जहां पे एक चीज दूसरी चीज के साथ मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया है. कई सारे और एग्जांपल्स होंगे आपके बोर्ड में, पेपर में आएगा कि कई सारी रिएक्शंस दी होंगी, कई सारी अभिक्रियाएं दी होंगी, उनमें से आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन खोजना है, ढूंढना है, तो आई थिंक आप ढूंढ लेंगे आसानी से. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. आप सबको समझ में आ रहा है. ओके, सो लेट अस रब इट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट second type of chemical reaction, that is our displacement reaction. So can anyone tell me what is displacement reaction? Okay, how can I hear you यार? सुन तो सकता नहीं हूं आपको. Okay, this is my not a live class. जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाओ तो मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं. Okay, so next is displacement, sorry not displacement, next is decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं आपको बहुत ही आसानी से बताता हूं बेटा. आप सभी लोग शादियों में जाते हैं और शादियों में क्या होता है कि आपको फ्रूट सैलेड मिलता है, राइट. फ्रूट सैलेड मिलता है ना. तो फ्रूट सैलेड में मान लो किसी को ब्लैक अंगूर पसंद नहीं है, ब्लैक ग्रेप पसंद नहीं है. सो यू व्हाट यू डू, यू रिमूव द ब्लैक ग्रेप. ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली आप सैलेड का जो भी फॉर्मेशन है उसको आप डिकम्पोज कर रहे हो. क्यों? क्योंकि नेचर क्या है सैलेड का कि उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन आप उसमें से कुछ चीजों को हटा रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसको विघटन रिएक्शन भी कहते हैं, किसी भी चीज का क्षय हो जाना या नष्ट हो जाना. ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक मैं बहुत अच्छा सा और बहुत क्लासिकल एग्जांपल बताता हूं, जो जनरली आप किसी भी बुक में, सैंपल पेपर में, किसी भी जगह पे आप उसको सुन सकते हैं. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है. ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक हुआ, स्प्लिट हुआ हीट की प्रेजेंस में और बना दिया हमारा CaCO2. मतलब समझ में आ गया कि एक बड़ा कंपाउंड दो या दो से तीन छोटे कंपाउंड से ब्रेक होता है, राइट. आर यू गेटिंग दैट? इट्स जस्ट लाइक आई कैन से इट्स जस्ट लाइक न्यूक्लियर फिजन. ओके, फिजिक्स वाले समझ में आ रहा है आपको ना. न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब एक बड़ा नाभिक, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन. तो इट्स जस्ट लाइक न्यूक्लियर फिजन. ओके, लेट मी टेल यू जनरल इक्वेशन ऑफ दिस. A, B, arrow, A plus B. It is just opposite of combination reaction. Combination reaction का just उल्टा कर दीजिए तो हमारा decomposition reaction हो जाता है. Now let us discuss the type of decomposition reactions. So there are various types of decomposition reaction. Then let me tell you one by one. So the first decomposition reaction is thermal decomposition reaction. Very good. Thermal decomposition reaction. And the another is what? Photolytic decomposition reaction. Okay, photolytic decomposition reaction. Next is what? Electrolytic decomposition reaction. Electrolytic डिकम्पोजिशन. ओके, अब बेटा देखिए, आप इसके नाम को पढ़ करके ही आइडिया लगा लीजिए. इफ यू हैव कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन, सो इफ यू हैव कॉमन सेंस यू कैन यूज योर कॉमन सेंस हियर. सो थर्मल मीन्स, आप थर्मल वेयर पहनते हो ना, रूपा का थर्मल वेयर, अंडा डालते ही चूजा निकल आता है, लाइक दैट. तो थर्मल मतलब हीट, यहां पे बात हो रही है हीट की.
फोटोलिटिक मतलब क्या हुआ, लाइट, बिकॉज फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो फोटो मीन्स लाइट, एंड इलेक्ट्रो नाम से ही क्लियर है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट मी मूव ऑन. I am going to tell you what is thermal decomposition reaction. So any reaction in which heat is involved, that is known as thermal decomposition reaction. For example, CaCO3 एरो के ऊपर ये डेल्टा बना दीजिए आप, चाहे यहां पे हीट लिख दीजिए, डेल्टा हीट का ही एक सिंबल है, हीट और डेल्टा कुछ भी बना दीजिए, हीट, समझ में आ गया। CaCO3 को हमने हीट किया और हीट करने के बाद हमें CaO प्लस CO2 मिल गया। एक और बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, सीबीएसई अक्सर पूछता है, क्या है वो, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस को हीट जब करेंगे आप तो क्या बनेगा, है ना, सभी को मालूम है, बनेगा PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, है ना, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 टाइम्स कर दो, यहाँ पे 2PbO कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पे हीट इन्वॉल्व हो रही हो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बात हीट की आई है तो मैं यहाँ पे 2 बातें और बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके, जस्ट वेट बेटा, लेट मी रब इट, देन आई एम टेलिंग यू। अगर बात हीट की आई है तो मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगा। वन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड वन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, राइट? फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्ड इटसेल्फ, एंडोथर्मिक, राइट? नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक, ओके? आप सभी लोग बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है ना, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, फ्रूट के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने, एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मीजोडर्म, या आपको बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाया गया होगा कि आफ्टर 6-7 months द लेयरिंग ऑफ द ह्यूमन बेबी स्टार्ट्स, है ना, एक्टोडर्म फॉर्म द स्किन, मीजोडर्म फॉर्म द ऑर्गन्स एंड एक्टोडर्म फॉर्म द बोन स्ट्रक्चर। ओके, सो लीव द बायोलॉजी। एंडो का मतलब क्या हुआ बेटा, सीधे सीधे समझो, अंदर, अंदर। एक्सो का मतलब क्या हुआ, बाहर। यदि किसी रिएक्शन में हीट अंदर लग रही है, बिना हीट के रिएक्शन हो नहीं रही है, हीट इन्वॉल्व हो रही है, देन दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में, मान लो ये कोई रिएक्शन है, A प्लस B प्लस C गिव्स AB प्लस C प्लस हीट, यहां पे प्लस हीट लिखा होगा, बस समझ रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लिखा होगा, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ये चीजें क्लियर है आपको, और एग्जांपल्स आप इसके देखिएगा, बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आई थिंक कि फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो वर्ड का मतलब होता है बेटा सनलाइट। क्या होता है मतलब, सनलाइट या कोई भी लाइट। आपने देखा होगा सिल्वर ब्रोमाइड की बोतल को, सिल्वर आयोडाइड की बोतल को, सिल्वर क्लोराइड की बोतल को हमेशा ब्राउन कलर की बोतल से लैब में रखा जाता है ना, लैब में ब्राउन कलर की बोतल में रखा जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर उसको व्हाइट बोतल में रखेंगे तो वो लाइट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसका नेचर बदल जाएगा। आर यू क्लियर? ओके, सो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका AgBr, ठीक है, एरो, एरो के ऊपर लिखेंगे लाइट, क्या लिखेंगे, लाइट, और ये दे देगा हमें Ag प्लस Br2। ओके, तो यहाँ 2AgBr कर देंगे, 2Ag प्लस Br2, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे लाइट का प्रयोग हो रहा है
वो हमारा कहलाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज आवर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. You all know that water electrolytic decomposition. Okay, I think the ink of the marker is a little less, so I hope ki you don't mind it. Maybe sometimes it happens, but my voice is very clear. So electrolytic decomposition reaction where electricity is used. You know, water cannot be broken down by any physical method. You cannot break water by boiling, you cannot break water by freezing, you cannot break water by any means. Means कि वाटर के आयंस को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल नहीं सकते, लेकिन वन मेथड इज देयर, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो हियर what happened? H2O in the presence of electricity, it gives what? H2 plus half O2, right? यहां से आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना? If we can talk about another electrolytic decomposition reaction, you can say NaCl arrow electricity gives Na plus Cl minus. ये आयंस में ब्रेक हो गए. सो ऐसी रिएक्शंस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Am I clear? Am I making sense ना? ओके, सभी को समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? ओके, बोर होइएगा तो मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में कि सर बोर हो रहे हैं. ओके, तो डिकम्पोजिशन के टाइप्स हमने आपको सारे बता दिए. थर्ड टाइप पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? अदला बदली. मीन्स समझ में आ गई बात ना? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहलाता है. पार्टनर एक्सचेंज इसको नहीं कहेंगे, इसको एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं. पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन मैं दूसरी बताऊंगा. तो जैसे कुछ एक शेर में अक्सर सुनाता हूं, तू नहीं और सही और नहीं और सही. तो ऐसा ही कुछ इस रिएक्शन में होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज में अगर कोई कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा. अरे भाई, अगर कोई ताकतवर आदमी है तो कमजोर आदमी को मार के किनारे कर देगा, है ना? मूवी की टिकट खरीद लेगा, लाइन लगी है जहां पे, है ना? मान लो वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत सारी लाइन लगी थी कोविड की, ठीक है? तो जो लोग पावरफुल थे, जिनके पास रसूख था, पैसा था, वो लोग जो है गरीब लोगों के बीच में लाइन थोड़े लगाते थे. वो सीधा घुस करके अंदर से एनएम से इंजेक्शन लगवा लिए, राइट? तो उन्होंने डिस्प्लेस किया ना लोगों को, डोज को. वही मैं कहना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपेंस व्हेन अ रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल. सो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू one model reaction, okay, which you can see. So here you can see AB plus C है, तो ये बन गया AC plus B. इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए, यहाँ पे AB था और यहाँ पे AC हो गया, मतलब कि C B से ज्यादा रिएक्टिव था, B C से ज्यादा अट्रैक्टिव था. समझ रहे हैं? अट्रैक्टिव तो उसकी तरफ मुड़ गया, राइट? तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, लेट मी टेक अ फ्यू एग्जांपल. कॉपर सल्फेट, ये हमने लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, आपको याद होगा. तो CuSO4 की रिएक्शन अगर हम आयरन से कराते हैं तो आयरन इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम दिस रिएक्शन. तो द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस Cu टेक्स प्लेस. इसका कलर ब्लू होता है एंड ब्लू कलर चेंजेस टू ग्रीनिश कलर, राइट? So this is the bigger change which you can notice. Okay, so this is displacement reaction. Okay, now moving on to next topic. Next topic is double displacement reaction. Double displacement reaction क्या है? मैं बता रहा हूं आपको. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब कि दो मींस एक कपल है, उन्होंने डिवोर्स लिया, डिवोर्स लेने के बाद एक ने दूसरे से शादी कर ली और एक ने भी दूसरे से शादी कर ली। बात समझ में आ गई है ना, मतलब पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली, पति ने भी दूसरी शादी कर ली, तो दोनों ने पार्टनर एक्सचेंज कर लिया, राइट। तो इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। if you can say I'm just going you I'm just giving you a common reaction. So AB plus CD, AB और CD मिल करके बना रहे हैं AC प्लस BD, राइट। तो दोनों ने अपने पार्टनर को बदल लिया है, तो दोनों ने क्या किया है, अपने पार्टनर को बदल लिया है, तो इसलिए ये क्या है, AC और BD अलग अलग हो गए। इसका कई सारा एग्जाम्पल आपको मालूम है, जैसे कि कौन सा है, CH3COO का होल ट्वाइस PB, लेड एसीटेट। ओके, लेड एसीटेट की रिएक्शन यदि हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, 2KI से कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, मार्कर लिटिल आज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। तो ये रिएक्शन जब इसमें आपस में होगी तो इनमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये बन जाएगा 2CH3COOK प्लस क्या बनेगा, PbI2 बन जाएगा। तो यहां देखिए क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, लेड की जगह के ले ली, ठीक है, लेड की जगह के ने ले ली और आई की जगह पीबी के साथ में हो गई, ठीक है। तो यहां पे पार्टनर एक्सचेंज हुआ है ना, आपको क्लियर है, ओके। So this was the 4 type of chemical reaction which I had discussed today. I will give you one worksheet on the basis of this lecture, and in the next series I will take up the redox reaction and rancidity and tooth decay. These topics I will take, and because I am not in continuing the class because marker is not working, so till then, Hari Om, thank you, and thanks for watching. Just keep spreading this channel. If you like it, kindly subscribe it. Thank you, Hari Om. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.